Hey everyone, today we are going to start with Maths Chapter 3, Square and Square Roots, Cube and Cube Roots. So, you all must be aware about what is the meaning of square and cube, right? See here, square of 9 is 9 raised to 2, which is simply 9 into 9. 9 multiplied by 9 or 9 times 9, which is 81. Square of 3 by 7 is 3 by 7 the whole square. It's not just 3 square or 7 square, it's the whole square. That is 3 by 7 times 3 by 7, which is 9 by 49. Square of 0.2, that is 0.2 the whole square. So that is 0.2 times 0.2, that is 0.04. Right? Square is a number raised to the power of 2. Perfect square. When a natural number is squared, the answer is known as perfect square. Okay? Like 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16. So 1, 4, 9, 16, etc. are all perfect squares because they are squares of natural number. How do you test whether a number is perfect square or not? A given number is perfect square if it can be expressed as a product of pairs of equal factors. For example, 7056. So what you have to do is you have to do prime factorization of 7056. Now I'm sure you are all in class 8th and all you know how to find prime factorizations, prime factors. So first rule of prime factors is that you divide only by prime numbers. And I'm sure you know what are prime numbers. The smallest prime number is 2. Prime number is a number which does not have any factor other than 1 and the number itself. 2 किसी की टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है. Next prime number is 3. 2 and 3 are the only consecutive prime numbers. 2 और 3 ऐसे प्राइम नंबर है जिसके बीच में और कोई कॉम्पोजिट नंबर नहीं. Then 5, then 7, then 9. Is 9 a prime number? No, 9 is not a prime number. Why is 9 not a prime number? Because 9 comes in the table of 3 as well. So 9 is a composite number. 9 is not a prime number. After 7, there is 11, then 13, then 17, and so on. I'm sure you know all these are prime number and prime numbers are infinite. So always remember when you're doing prime factorization, you start your prime factorization by the lowest prime number. So always remember, start the prime factorization by 2. If the number at all is not divisible by 2, then check with 3. Like this number over here, 9075. Is this number divisible by 2? No. Then check whether it is divisible by 3. Yes, it is divisible by 3. Then divide it. Right? So like if you go on dividing the numbers obtained, right, you get series of prime numbers over here. These are all known as prime factors. If you write these prime factors like this in multiplication with each other, right, so you have to express your given number 7056 as the product of all the prime factors. If the prime factors are expressed as the product of pairs of equal factors, that means all the prime factors are can be paired with each other. जैसे यहाँ पे 2 का पेयर हो गया, ये 2 का एक पेयर, 2 का दूसरा पेयर, 3 का एक पेयर और 7 का एक पेयर. सारे प्राइम फैक्टर्स पेयर्स में हैं. अगर सारे प्राइम फैक्टर पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी प्राइम फैक्टर अकेला नहीं छूट रहा है, इसका मतलब है कि 7056 एक परफेक्ट स्क्वायर है. इसके बाद मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि स्क्वायर रूट कैसे ढूंढते हैं. ठीक है, अभी तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे क्या कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं ये समझ लो. व्हाट अबाउट 9075? देखो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, मतलब प्राइम फैक्टर्स है उसके, दोज आर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 11 इंटू 11. 5 और 11 तो पेयर में है, लेकिन 3 का क्या है, कोई पेयर नहीं. So 9075 cannot be expressed as the product of pairs of equal factors. Hence 9075 is not a perfect square. Perfect square कोई नंबर तभी होता है जब उसके प्राइम फैक्टर्स
पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, याद रखना। Square root of a number is that number which when multiplied by itself gives x as that product. इसका मतलब है कि 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 49 होता है, मतलब 49 का स्क्वायर रूट 7, द स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। 3 बाय 5 टाइम्स 3 बाय 5 9 बाय 25 होता है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 बाय 25 3 बाय 5। ये जो साइन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसके अंडर जो भी नंबर है, सपोज इसके अंडर है 16, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। क्या है 16 का स्क्वायर रूट? 4। इसका मतलब ये है कि 4 टाइम्स 4 16 होता है, या फिर 4 स्क्वायर 16 होता है। इसी का मतलब हम बोल सकते हैं कि दैट इज रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में? जैसे हमारा नंबर है 1764, मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं ताकि जब तुम एक्सरसाइज सॉल्व करोगे इट विल बी इजी फॉर यू। तो 1764 को अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले उसके प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा मैं, ठीक है। तो 1764 तो इवन नंबर लग रहा है बिकॉज इट एंड्स विथ 4, सो इट कैन बी डिविजिबल बाय 2। तो पहले उसको 2 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 882। देखो 882 भी 2 से डिविजिबल लग रहा है, तो फिर से उसको 2 से डिवाइड किया, मुझे मिला 441। 441 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम ट्राई करेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अभी कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है? when the sum of all the digits in the number gives a number which is divisible by 3, which gives a number which is multiple of 3. So 4 plus 4, 8 plus 1, 9. Is 9 a multiple of 3? Yes. So 441 has to be divisible by 3. So divide किया, 147 मिला। Again उसको check किया, 1 plus 4, 5 plus 7, 12. 12 is multiple of 3. So 147 can be divided by 3. Divide किया, 49 मिला। Now we know that 49 is not divisible by 3. So is 49 divisible by 5? Why is this question important? Why should we check whether 49 is divisible by 5 or not? Because after 3 the next prime number is 5, but we know that 49 is not divisible by 5. So the next prime number is 7. Is 49 divisible by 7? Yes. So 7 sevens are 49, right? And 7 ones are 7. तो ये सारे जो प्राइम फैक्टर्स है उसको हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, एंड वी find out that all these prime factors can be expressed as pairs, पेयर्स की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालना है? देखो बहुत ध्यान से देखना। स्क्वायर रूट निकालने के लिए वी राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू, ये जितने भी नंबर्स पेयर में है उसको सिर्फ सिंगल टाइम लिखना है। 2 इंटू 2 को एक बार लिख दिया, 3 इंटू 3 को एक बार 3 लिख दिया, 7 इंटू 7 को एक बार 7 लिख दिया। सो 2 3s are 6, 7s are 42। The same thing can be done with 2 4 3 3 6, ठीक है, and you can express that as square root of a number, ठीक है। सो प्राइम फैक्टर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ मैं तुम्हारे लिए एक अभी कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगा। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 720 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 720 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 720 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है और स्क्वायर रूट क्या है उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, ये भी ढूंढना है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तो हमारा नंबर है 720, ठीक है। सो पूछा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 720 टू फाइंड टू मेक इट अ perfect square number. So first what we'll do is we'll find prime factors of 720. So we'll divide it by 2, 360s are 2, 180s are 2, 90s are 2, 45s are. Is 45 divisible by 2? No. So should we divide it by 5? No. We should try whether 45 is divisible by the next prime number of 2. And the next prime number of 2 is 3. So is 45 divisible by 3? Yes. 3 15s are, 3 5s are,
and 5 ones. Okay, so the prime factors of 720 can be expressed as 2 into 2, 2 into 2, 3 into 3, and 5, out of which the pairs are these, and these. What about 5? It is a single number, right? Now we know that a number is a perfect square only if all its prime factors are in pairs, all its prime factors exist in pairs. Here all the numbers are in pair except 5. So we can say that in order to make 720 a perfect square number, if 5 would have been in pair, then 720 would have been a perfect square. So we can write that therefore 5 is the smallest number which must be multiplied by 720 to make it a perfect square. 5 एक सबसे छोटा नंबर है जिसको हम 720 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. ठीक है, सो 720 multiplied by 5. Okay, now 720 multiplied by 5 is 3600. Therefore 3600, ये फर्स्ट आंसर है तुम्हारा, is the perfect square. अभी हमें क्या ढूंढना है पता है? The next thing we have to find is square root of this perfect square so obtained. See, that's what they are saying in the question. Find the square root of this perfect square number. This perfect square number is 3600. So we have to find square root of 3600. अब 3600 को फिर से प्राइम फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि 3600 आया कहां से. 3600 ये जो 5 है ना, उसको पेयर बनाने से आया. मतलब 5 को और एक बार हमने मल्टीप्लाई किया और 5 की पेयर बना दी, तब जाके 3600 बन गया. सो वी कैन से दैट 3600 is nothing but 2 times 2 times 3, sorry, there is two pairs of 2, 2 times 2 times 3 times 3 times 5 times 5. These are the prime factors of 3600. 2, 2, 3 and 5, they all exist in pair. Therefore root of 3600 is 2 times 2 times 3 times 5. क्या किया मैंने? जितने भी नंबर पेयर्स में थे उनको एक एक बार लिख दिया सिंगल टाइम. ठीक है, सो 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60. So 60 is the square root of 3600. समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 6000 शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. अब देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क है. उसमें पूछा था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 720 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. दोनों केस में हम लोग सेम तरीके से शुरुआत करेंगे. यहाँ पे what we are going to do is we will find the prime factors of 6000 which we have done over here. So prime factors of 6000 अगर देखेंगे तो 2 पेयर्स में एग्जिस्ट करता है और एक पेयर है 2 की. 5 एक पेयर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन 3 there is a single 3 and there is a single 5. So 1 3 and 1 5 are not in pairs. अब क्वेश्चन में पूछा है by which smallest number 6000 must be divided. मतलब किसको हटा देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए, मतलब वी हैव टू रिमूव समथिंग. मल्टीप्लाई करना है मतलब वी हैव टू ऐड अ फैक्टर, हियर वी हैव टू रिमूव अ फैक्टर. तो कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिसको हम रिमूव करेंगे? तो आंसर सिंपल है, हम
अगर 6000 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो वी विल रिमूव दोज फैक्टर्स विच डू नॉट एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो 3 और 5 कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो पेयर्स में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम 3 और 5 को रिमूव कर देंगे। ठीक है, 3 और 5 को रिमूव करेंगे मतलब 15 को रिमूव करेंगे। सो 6000 must be divided by 15 in order to make it a perfect square। जब इसको 15 से डिवाइड करेंगे विल गेट 400। तो ये जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, दैट इज 400। एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। 400 का स्क्वायर रूट क्या है? 20। ठीक है, 400 का स्क्वायर रूट ढूंढने के लिए क्या करो पता है? सिर्फ ये लिख दो, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 5 इंटू 5। 2 इंटू टू इंटू 5 मतलब एक बार लिख दिया, सारी पेयर्स में जो भी नंबर्स आते हैं उनको एक बार लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 400 मिल जाएगा। तो सिंपल। नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम। 1225 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as there are number of rows। Find the plants in each row। देखो ये क्या बोलना चाहता है। सपोज मेरे पास कुछ प्लांट्स है, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्लांट्स है मेरे पास। कितने प्लांट्स है? 4। और वैसे ही ये तो फर्स्ट रो हो गई। कितनी रो हो गई? फर्स्ट रो। जितने प्लांट्स है उतनी ही रोज है। अगर 4 प्लांट है तो रो कितनी हो जाएगी? 4, 4 rows। and in each row there will be 4 plants। I'm just giving you an example। ठीक है, each row will have 4 plants and there are 4 rows। can you tell me how many plants are there in all? We have 4 times 4, 4 rows times 4 plants in each row, that is 16 plants। ठीक है, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर मेरे पास 16 प्लांट्स है और हर रो में 4 प्लांट्स है और जितनी रोज है उतने ही प्लांट्स है, जितने प्लांट्स है हर रो में उतने ही रोज है, तो नंबर ऑफ रोज क्या होगी? तो सिंपल, रूट ऑफ 16 कर दो तो तुम्हें नंबर ऑफ रोज मिल जाएगी। क्या किया मैंने? जो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ प्लांट्स थे, मैंने उसका स्क्वायर रूट ले लिया तो मुझे नंबर ऑफ रोज मिल गई। ठीक है, ये सेम सिचुएशन हमको दी है लेकिन सिर्फ जो नंबर है वो थोड़ा अलग दिया है। सिचुएशन सेम है कि हर एक रो में उतने ही प्लांट्स है जितनी नंबर ऑफ रोज है, और टोटल प्लांट्स कितने? 1225। तो सिंपल मैं क्या करूंगा? 1225 का स्क्वायर रूट ले लूंगा तो मुझे नंबर ऑफ रोज मिल जाएगी, या नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज 35। सिंपल, समझ में आया? कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अच्छा, उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 12, 25 एंड 20। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 12, 20, 12, 15 एंड 20। आई एम सॉरी, 12, 15 और 20 से डिविजिबल लीस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ये याद रखना है तुम्हें, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स। द एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स इज 60। ठीक है, एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स इज 60। अब तुम्हें 60 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं, विच इज 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। अब इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो वी हैव टू गेट 3 एंड 5 इनटू पेयर्स। मतलब मुझे और एक 3 और एक 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे किसको? 60 को। तो 60 टाइम्स 15 कितना हो जाएगा? 900। 60 टाइम्स 15 कितना हो जाएगा? 900। Hence the required number is 60 times 15 which is 900। तो least square number divisible by 12, 15 and 20 is 900। फिर से बता देता हूं हमने क्या किया। लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 3 नंबर्स ढूंढने के लिए पहले तीनों नंबर का एलसीएम ढूंढा और वो एलसीएम का प्राइम फैक्टर्स ढूंढा, और वो प्राइम फैक्टर्स में हम अगर हमें पेयर्स नहीं मिलती है तो हमें पेयर्स बनानी है, और वो प्राइम फैक्टर्स जिस नंबर के निकाले हमने वो नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और परफेक्ट स्क्वायर जो आएगा दैट इज आवर आंसर। ठीक है, प्लीज रिमेंबर द मेथड।
तो ये फर्स्ट पार्ट था, छोटा सा पार्ट है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8 क्वेश्चन है, ये तुम्हें कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ मैं तुम्हें और एक होमवर्क दे रहा हूँ। रिमेंबर, यू हैव टू राइट स्क्वेयर्स ऑफ numbers from 1 to 30 and memorize। बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क दे रहा हूं। सो बेसिकली ऐसे लिखना है तुम्हें, 1 स्क्वेयर 1, 2 स्क्वेयर 4, 3 स्क्वेयर 9, 4 स्क्वेयर 16। कहाँ तक लिखना है? अप टू 30 स्क्वेयर। ठीक है, अप टू 30 स्क्वेयर तुम्हें लिखना है और मेमोराइज करना है, तुम्हें इसको मेमोराइज करना है। दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड ऑफ कोर्स एक्सरसाइज 3A। ठीक है, हो जाएगा इतना, इजी है ना? चलो, छोटा सा वीडियो बनाया, छोटी सी एक्सरसाइज है, जल्दी जल्दी शुरू करो, इसको खत्म करते हैं चैप्टर को एंड विल मूव अहेड विद द सिलेबस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।